Hey everyone, welcome back to the channel. Today's topic is major penalties. So, in the last lecture, we studied about penalties. So, there are essentially two types of penalties, minor penalties and major penalties under your Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1965. Today, let's begin with major penalties. तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दो तरह की पेनल्टी होती है, माइनर पेनल्टी एंड मेजर पेनल्टी. आज हम शुरू करते हैं मेजर पेनल्टीज के साथ. सो रूल नंबर 11 इटसेल्फ हैज एनमरेटेड द मेजर पेनल्टीज. रूल 11 में ही मेजर पेनल्टीज भी बताई गई हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग देम. Save as provided for in clause 3A, reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further direction as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the period of such reduction, and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay. So, except what has been provided in clause 3A. Let's go back to 3A. It was what? Three conditions which were given. एक तो टाइम पीरियड था 3 years का स्पेसिफाइड. सेकेंडली था कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए. और थर्ड था कि पेंशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. सो व्हाट हैज़ बीन प्रोवाइडेड हियर एक्सेप्ट दैट reduction in the time scale of pay for a specified period, but क्या है उसके साथ? with further directions. क्या further directions है? as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the period of such reduction. तो ये जो period of reduction है इसमें increments of pay क्या वो earn करेगा या नहीं करेगा, उससे related directions हैं. एंड वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड. सो फॉर एग्जाम्पल 3 year के लिए आपने उसे पूरा प्रिस्क्राइब किया है कि 3 year लोअर स्टेज पे डाल दिया है पे स्केल पे. तो ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड लाइक 3 year ओवर होने के बाद द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ पे. तो आपने इस 3 year के टाइम पीरियड के अंदर तो आपने उसके इंक्रीमेंट्स को हटा ही दिया. फॉर एग्जाम्पल उसके ख़त्म होने के बाद इस का असर रहेगा, देन इट्स अ मेजर पेनल्टी. तो यहाँ पे सेम एज व्हाट इज इन योर क्लॉज 3, बट यहाँ पे मेनली आपका इंक्रीमेंट्स ऑफ पे अफेक्ट पड़ेगा उसके साथ. ठीक है. सो इट्स जस्ट दैट अलॉन्ग विद योर रिडक्शन टू लोअर पे स्केल योर इंक्रीमेंट्स will also be affected. Okay. Now sixth, reduction to lower time scale of pay, grade, post of service. तो इसमें 4 चीज़ें हैं. पे भी हो सकती है, ग्रेड भी हो सकता है, पोस्ट या सर्विस भी हो सकती है, फॉर अ पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी. तो ये जो ऑर्डर होगा आपका पेनल्टी का उसमें आपको टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा. which shall be a bar to the promotion of the government servant during such specified period to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with direction as to whether or not on promotion on expiry of said specified period, what the period of reduction to time scale of pay, grade shall operate to postpone future, if so what extent, and government servant shall regain his original seniority in higher time of scale of pay, grade, post or service. तो यहाँ पे let's just try and understand what the simple deduction from this language is. तो दोबारा से आपका रिडक्शन हो रहा है किसी भी सेंस में, पे के सेंस में, ग्रेड, पोस्ट के सेंस में, as per the order of penalty. Now this reduction shall act as a bar to your promotion. It is given here. जबकि जितनी भी minor penalties हैं उनका effect if you have noticed it is for a specified period. मतलब
अगर आपका पे रिड्यूस हुआ है तो सिर्फ इस पीरियड को अफेक्ट करेगा, उसके बाद के पीरियड को अफेक्ट नहीं कर रहा. But here it is given that it shall be a bar to the promotion of the government servant. तो गवर्नमेंट सर्वेंट के प्रमोशन पे बार होगा ऐसा रिडक्शन विद डायरेक्शन. अब इसके साथ साथ और क्या होगा, डायरेक्शन होगा क्या, पीरियड ऑफ रिडक्शन shall operate to postpone future increments of his pay. If so, to what extent? And तो फ्यूचर इंक्रीमेंट्स पोस्टपोन होंगे तो किस एक्सटेंट तक पोस्टपोन होंगे, दैट विल ऑल्सो बी स्पेसिफाइड. फर्दर, वेदर ही विल रिगेन हिज ओरिजिनल सीनियोरिटी. तो अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आपका प्रमोशन रोक दिया है तो क्या उससे आपकी सीनियोरिटी पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं. आपकी इंक्रीमेंट्स को रोक दिया है, किस टाइम तक रोक दिया है, क्या सिर्फ पनिशमेंट के दौरान ही ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पनिशमेंट है या उसके बाद वाले पीरियड को भी वो अफेक्ट करेगा. सो दिस इज़ योर सेकेंड मेजर पेनल्टी. नाउ थर्ड मेजर पेनल्टी इज़ योर कंपल्सरी रिटायरमेंट. नाउ दिस इज़ बिफोर योर पीरियड ऑफ सुपर एनुएशन, बिकॉज हमने पढ़ा था हियर इन द एक्सप्लेनेशन व्हाट इज़ नॉट अ पेनल्टी, your retirement on completion of your period of service or superannuation. But उससे पहले अगर compulsory retirement हो रहा है then it is a major penalty. Eighth, removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the government. तो आपको remove ही कर दिया गया है सर्विस से, that is a major penalty. सेकेंडली है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, एंड ये वेदर इट विल बी अ डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिमूवल जब भी होता है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए, जबकि डिसमिसल इज अ ग्रेड हायर पनिशमेंट वेर इन इट विल बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर योर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट. नाउ इट सेज प्रोवाइडेड दैट in every case in which the charge of possession of assets disproportionate to known sources of income or the charge of acceptance from any person of any gratification other than legal remuneration as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause 8 or 9 shall be imposed. तो जहाँ पे भी आपने illegal gratification में इन्वॉल्व हैं वहाँ पे आपको कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, या तो आप रिमूव कर दिए जाएंगे या आपको डिसमिसल किया जाएगा. तो जहाँ पे भी आपने घूस ली है उन केसेस में या तो आपको सर्विस से हटा दिया जाएगा, रिमूवल कर दिया जाएगा या डिसमिसल कर दिया जाएगा. बट इट हैज़ टू बी एस्टेब्लिश, दैट इज़ प्रॉपर एविडेंस और जो भी इंक्वायरी है उसके बाद ही ऐसा पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा. Provided further that in any exceptional case and for reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed. कुछ exceptional cases में अगर आप writing में record, for example, it was not on a big scale and any other penalty is being imposed. Maybe his pay is being reduced. So there you have to give reasons in writing that why is such the case, why not removal or dismissal given to such person. Now this explanation we have already dealt with, that what is not a penalty. Now coming to the next section, rule here, procedure for imposing penalties, your rule 14 that talks about procedure for imposing major penalties. So let's start with this. Sub rule 1, no order imposing of any of the penalties specified in clause 5 to 9 of rule 11 shall be made except after an inquiry held. तो सबसे पहला prerequisite क्या है, इंक्वायरी होगी, उसके बिना आपके ऊपर कोई भी मेजर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी.
एज फार एज मे बी एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल. किस मैनर में होगी इंक्वायरी वो भी इस रूल में प्रोवाइडेड है. एंड रूल 15 और किस में है, रूल 15 में है. और इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850 वेयर सच इंक्वायरीज हेल्ड अंडर द एक्ट. तो इंक्वायरी का मैनर या तो रूल 14-15 से होगा या फिर जो पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट है उससे it has to be done in such manner prescribed therein. Second, whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehavior against a government servant, it may itself inquire into or appoint under this rule or other provision of the Public Servants Inquiries Act 1850 as the case may be, an authority to inquire into the truth thereof. तो इंक्वायरी कंडक्ट आप अगर ओपिनियन है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की इंक्वायरी होनी चाहिए, देन दे कैन देमसेल्व्स कंडक्ट सच इंक्वायरी, सच डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. या फिर कोई स्पेशल अथॉरिटी को भी आप ये अथॉरिटी दे सकते हो कि इंक्वायर करो इस मैटर में. ठीक है. सो दीज आर टू बेसिक रूल्स. नाउ प्रोवाइडेड दैट there is a complaint of sexual harassment within 3C of CCS rules 1964. The complaints committee established in such ministry or department office for inquiry into such complaint shall be deemed to be the inquiring authority. तो sexual harassment के cases में जो complaints committee है वो ही inquiry authority होगी, appointed by the disciplinary authority for purpose of these rules. And the complaints committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for complaints committee for holding the inquiry into the complaints, the inquiry as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules. So it's a simple provision which says कि sexual harassment के cases में कौन करेगा, complaint committee करेगा. ठीक है. कंप्लेंट कमेटी का इंक्वायरी प्रोसीजर या तो जो अलग से दिया है वो होगा या फिर इन रूल्स में जो दिया है उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा सकता है. नाउ एक्सप्लेनेशन. where disciplinary authority itself holds inquiry, जहाँ पे खुद disciplinary authority inquiry hold कर रही है. Any reference in sub rule 7 to sub rule 20 in sub rule 22 to inquiring authority shall be constituted as a reference to तो what is a reference to disciplinary authority? इसका आंसर हमें सब रूल 7 से 20 में मिलेगा और 22. Okay. Where disciplinary authority appoints a retired government servant as inquiring authority, any reference shall include such authority. तो जहाँ पे भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को इंक्वायरिंग अथॉरिटी बनाया है वहाँ पे भी रेफरेंस 7 से 20 एंड सब रूल 22 में उसे इंक्लूड उस अथॉरिटी को इंक्लूड करेगा. ठीक है. Basically, reference to the disciplinary authority will also include this authority. अगर वो authority कौन है, एक retired government servant है. Where it is third sub rule. Now here it starts. Where it is proposed to hold an inquiry against. तो सबसे पहला क्या है, आपके पास एक opinion, एक good and sufficient reason है कि okay there is some misconduct on part of this person. तो आप क्या करोगे, होल्ड एन इंक्वायरी. दैट्स योर सेकंड स्टेप. एंड द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शेल ड्रॉ अप और कॉज टू बी ड्रॉन अप. क्या होगा, इम्प्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट इनटू डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स ऑफ चार्ज. तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ चार्ज बनाएंगे जहाँ पे लिखा होगा कि सी ए यू हैव डन दिस मिसकंडक्ट, then you have not obeyed such and such orders. In this manner, in different articles of charge will be framed and the substance, क्या misbehavior था, क्या misconduct था जिसके basis पे वो बनाया जा रहा है वो सब mention किया जाएगा. that on this date this thing happened with these persons involved or whatever. Then a statement of imputation of misconduct or misbehavior in support of each article of charge which shall contain. क्या करेगा, all relevant facts. तो हर misconduct क्या misconduct था हर article of charge के नीचे आप specify करेंगे और उसमें क्या details होंगी वो भी दिया है. all relevant facts, सब relevant facts include होंगे. relevancy क्या होती है हम अपने evidence act से भी
देख सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग एनी एडमिशन और कन्फेशन मेड बाय द, इसके साथ इसमें क्या इंक्लूड होगा, कोई भी एडमिशन, कोई फैक्ट जो उसने एडमिट किया है, जो डिनाई नहीं किया है, वो इंक्लूड होगा। कोई कन्फेशन दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट ने, वो भी इंक्लूड होगा। A list of documents by which and a list of witnesses by whom the articles of charge, तो जो ये articles of charge आपने लगाए हैं, किस डॉक्यूमेंट पे आधारित है, किस पे बेस्ड है और किस विटनेस पे बेस्ड है, वो भी मेंशन किया जाएगा साथ में ही। नाउ कमिंग टू फोर्थ सब रूल, तो इधर हमने आर्टिकल्स ऑफ चार्ज जो फर्स्ट स्टेप है वो, सेकंड स्टेप है वो लिया है। क्या मिसबिहेवियर था उसको बताया, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप कोरोबरेट कर रहे हो, क्या विटनेसेस हैं, वो भी स्पेसिफाई किया। नाउ कमिंग टू सब रूल 4, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शेल डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अ कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। तो आप हमेशा जो भी पर्सन है हु इज अलेज्ड टू हैव कमिटेड सच मिसकंडक्ट, उसको आप आर्टिकल्स ऑफ चार्ज डिलीवर करोगे, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस, जो भी स्टेटमेंट हैं कि आपने क्या किया, जो भी उसका सब्सटेंस है वो, और जो डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस हैं वो भी आप सब उसको इन्फॉर्म करोगे। सो फर्स्ट स्टेप आफ्टर दैट इज इंफॉर्मेशन टू योर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। अब इसे आर्टिकल्स ऑफ चार्ज मिल गया तो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। तो अब पहला क्या कि आपने बनाया चार्ज, उस चार्ज को आपने पर्सन को दे दिया, पर्सन क्या करेगा, खुद को डिफेंड करेगा, तो उसने WS रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दिया। अगर वो चाहता है तो ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। एंड ऑल्सो स्टेट वेदर ही डिजायर्स टू बी हर्ड इन पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो यहाँ पे 15 डेज का पीरियड सेट किया है कि विद इन 15 डेज अगर वो चाहता है एक पर्सनल हियरिंग हो तो वो भी स्पेसिफाई कर दे, विच मे बी फर्दर एक्सटेंडेड टू अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज एट अ टाइम फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। इन 15 डेज के टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, पर एक बार में आप सिर्फ 15 दिन बढ़ाएंगे, जिसके लिए आप रिटर्न में रीज़न लिखेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इकट्ठे 45 डेज़ का वो मांग लूँ कि भाई मुझे 45 डेज़ के बाद अपना रिटर्न सबमिशन देना है या हियरिंग चाहिए। यू कैन ओनली आस्क फॉर 15 डेज एट अ टाइम। तो 15 दिन जब ख़त्म होंगे देन नेक्स्ट 15 दिन के लिए मांगूंगी, उसके 15 दिन ख़त्म होने पे अगले 15 दिन के लिए मैं मांग सकती हूँ, एक बार में 15 डेज नहीं होगा। नाउ प्रोवाइडेड दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अब इसमें 45 डेज का आपको मैक्सिमम दे दिया कि दैट मीन्स आप 3 बारी एक्सटेंशन क्लेम कर सकते हो फ्रॉम विच डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ योर आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। तो अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ चार्ज आज 1 तारीख को मिला है, 1 जनवरी को, तो आप मैक्सिमम 15 फैब तक एक्सटेंड ले सकते हो, उसके बाद नहीं। On receipt of WS of Defense, the disciplinary authority may itself inquire into such articles as are not admitted, or if it considers a point under subrule 2, an inquiring authority for the purpose where all articles of charge have been admitted by the government servant in his written statement of defense. The disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit, and shall act in manner laid down in Rule 15. So here what it says is, जब आपने अपना रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दे दिया तो उसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी करेगी। आप अब उनके पास डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास आर्टिकल्स ऑफ चार्ज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये आपका साइड है, ठीक है। तो अब क्या करेगी, वो एग्जामिन करेगी, इंक्वायर करेंगी कि क्या चार्जेस, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या विटनेसेस सही हैं, क्या नहीं है। अब इस चीज़ के लिए व्हाट कैन दे डू, दे विल रेफर टू योर रूल नंबर 50, ठीक है। इफ नो रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इज सबमिटेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers necessary to do so, appoint an inquiring authority. तो या तो जब WS नहीं मिली है
तो आप खुद से इंक्वायरी कर सकते हो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन आर्टिकल्स ऑफ चार्ज पे, एंड चाहे तो वो एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी अलग से भी कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है, किसी को बनाया जा सकता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर खुद से इंक्वायरी कर रही है या अपॉइंट कर रही है किसी इंक्वायरी अथॉरिटी को, देन बाय एन ऑर्डर अपॉइंट अ गवर्नमेंट सर्वेंट और अ लीगल प्रैक्टिशनर टू बी नोन एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो इन ईदर केस एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा जो कि एक लीगल प्रैक्टिशनर या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, टू बी प्रेजेंट इन सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, जो आपके सपोर्ट में रहेगा। एक्सप्लेनेशन, for purposes of this rule expression government servant includes a person who has ceased, तो ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है। सिक्स्थ, the disciplinary authority shall, where it is not in the inquiring authority, forward to the inquiry authority। तो जहाँ पे disciplinary authority और inquiring authority different हैं, वहाँ पे वो इंक्वायरी अथॉरिटी को क्या देगी, जो भी उसने आर्टिकल्स ऑफ चार्ज लगाए हैं उससे रिलेटेड स्टेटमेंट, जो उनको रिटन स्टेटमेंट मिली है डिफेंस की गवर्नमेंट सर्वेंट से, जो भी विटनेस स्टेटमेंट्स हैं उसकी कॉपी, एविडेंस प्रूविंग डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आपने जो बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया है, अभी WS से पहले आप उसे सब कुछ सप्लाई करोगे इन्फॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अब उसके रिसिप्ट, कुछ रिसिप्ट होगी आपने पोस्ट किया है या प्रोवाइड किया है, you have to provide that to the government servant कि see we have supplied such information। then a copy of order appointing the presenting officer, क्योंकि presenting officer का भी अपॉइंट करना ज़रूरी है, तो उसकी अपॉइंटमेंट को शो करने के लिए जो ऑर्डर था वो भी। now 7th, the government servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within 10 working days from date of receipt by inquiry authority of articles of charge। तो इंक्वायरी अथॉरिटी को जब 10 दिन के अंदर जब उन्हें आर्टिकल ऑफ चार्ज मिल गया है, उसके 10 डेज के विदिन द स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशंस एज द इंक्वायरी अथॉरिटी बाय नोटिस इन राइटिंग स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ और विदिन सच फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 10 days में अलाउ। तो वो क्या करेगी, शेल अपियर इन पर्सन, सॉरी इंक्वायरी अथॉरिटी को मिलने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट उनके पास अपियर करेंगे इन पर्सन। तो अभी तक क्या हुआ, लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज। तो सबसे पहले आपके आर्टिकल्स ऑफ चार्ज फ्रेम हुए, उसमें जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स थे सब हुआ। उसके बाद आपने जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको सप्लाई किया। उसके बाद अगर उसे WS सबमिट करना था तो उसने WS सबमिट किया। इसके बाद ईदर डिसीजन लिया जाएगा कि इंक्वायरी अथॉरिटी बैठेगी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ईदर वेज एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट को रखा जाएगा ऑन देयर बिहाफ। उसके बाद यहाँ पे इन पर्सन अपेयरेंस होगा विदिन 10 days, जब इस इंक्वायरी या 10 days के बाद जहाँ पे इंक्वायरी अथॉरिटी को आर्टिकल्स ऑफ चार्ज सप्लाई हो गए हैं। 8th, government servant may take assistance of any other government servant posted in office at his headquarters or place where the inquiry is held to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless presenting officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner or the disciplinary authority having regard to the circumstance of the case so permits। तो जनरली जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनके ऊपर एलिगेशंस लगी हैं वो भी अपने बिहाफ पे अब क्या करेंगे, या तो किसी और गवर्नमेंट सर्वेंट को असिस्टेंस ले सकते हैं या फिर किसी लीगल प्रैक्टिशनर को कर सकते हैं। बट सेकंड वाली जो चीज़ है लीगल प्रैक्टिशनर को करना, इस डिपेंडेंट कि अगर अथॉरिटी ने भी लीगल प्रैक्टिशनर चुना है तो यू कैन गो विद अ लीगल प्रैक्टिशनर, अदरवाइज नॉट। देन प्रोवाइडेड that a government servant may take assistance of any other government servant posted at any other station if the inquiring authority having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing so permits। तो आप किसी और स्टेशन पे पोस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट की भी असिस्टेंस ले सकते हैं अगर आपको परमिट कर दे इंक्वायरी अथॉरिटी ने इन राइटिंग। तो दिस इज़ अ वेरी जनरल थिंग कि जो भी स्टेप है और आप कुछ अलग करें, आप
टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, आप उसे अलाउ कर रहे हैं कि आप किसी और पोस्टिंग स्टेशन से हेल्प ले सकते हैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो आप सब कुछ नोट करेंगे इन राइटिंग विद रीजंस. ठीक है. Again, the principles of natural justice. Note, the government servant shall not take the assistance of any other government servant who has 3 pending disciplinary actions on hand in which he has to give assistance. तो अगर कोई person है जिसके पास पहले ही 3 matters में he is giving assistance, तो he is disqualified. B. Clause B says that the government servant may also take assistance of a retired government servant to present the case on his behalf. तो retired को भी आप ले सकते हैं. Subject as may be specified by the president from time to time by general or special order in this behalf. तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस अगर रखना चाहें तो ही कैन. 9. The government servant who has not admitted any articles of charge in his WS or has not submitted any WS appears before inquiring authority. तो जब in person inquire करते हैं और उन्होंने कुछ भी admit नहीं किया है, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defense to make. And if he pleads guilty to any of articles of charge, the inquiry authority shall record the plea and sign the record and obtain signatures. तो सबसे पहला काम क्या है? To ask if he pleads guilty or not. ठीक है. यहाँ से अब इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू होंगी. तो यहाँ पे जितना भी से पहले काम था वो ख़त्म हो गया है. इधर भी एक पर्सन है असिस्ट करने को, इधर भी एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर है. एंड नाउ दैट पर्सन हैज़ अपीयर्ड इन पर्सन. अब उससे सबसे पहले पूछा गया कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट. उसको रिकॉर्ड करेंगे, उनका सिग्नेचर लेंगे. फर्स्ट स्टेप. Second, the inquiry authority shall return the finding of guilt in respect of those to which he pleads guilty. अगर उसने कर दिया है तो यहाँ से इंक्वायरी अथॉरिटी फाइंडिंग जो है उसको नोट कर लेगी और उस पर फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होगी तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इट विल रिटर्न बैक. नाउ 11. द इंक्वायरी authority shall, if the government servant fails to appear within specified period या refuse कर रहा है या omits to plead, require the presenting officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, shall adjourn the case to a later date not exceeding 30 days. After recording an order that government servant may, for the purpose of preparing his defense, inspect within 5 days of order within such further not exceeding 5 days as inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred in sub-rule 3, submit a list of witnesses to be examined in his behalf. तो इसमें क्या है कि कुछ टाइम प्रपोज किया गया है कि विदिन 30 डेज हो जाना चाहिए ऐसा कि अगर एडमिट नहीं कर रहे गवर्नमेंट सर्वेंट और ऊपर से ही हैज़ फेल्ड टू अपीयर, आया ही नहीं इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने अपना डिफेंस प्रेजेंट करने के लिए और चाहता है कि जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो एविडेंस प्रोड्यूस करे. इंक्वायरी अथॉरिटी जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर से एविडेंस प्रोड्यूस कराएगा बाय विच ही proposes to prove the articles of charge and adjourn the case to a later date. ठीक है, adjournment हो जाएगा, that is next date लग जाएगी. and इधर प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो होगा वो एविडेंस प्रूव करेगा, वो एविडेंस प्रोड्यूस करेगा जिससे प्रूव हो जाए उनका केस. नाउ यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अपने डिफेंस के प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकता है, 5 days ऑफ दिस ऑर्डर फर्दर टाइम ले सकता है. दूसरा, जो विटनेस उसके बिहाफ पे उसे प्रेजेंट करने हैं बिफोर द अथॉरिटी वो बता सकता है. नाउ इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज ओरली or in writing for supply of copies of statement of witnesses mentioned in the list referred to in sub rule 3, the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible, in any case not later than 3 days before the commencement of the examination. तो जैसे कोर्ट में एक जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती है उसी तरह से पहले उसको चार्ज सप्लाई किया गया, आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, उसको रिटन स्टेटमेंट
देने का मौका मिला, कुछ भी अपियर होके गिल्टी और नॉट गिल्टी का प्ली आप रेज कर सकते हैं। देन आपको अगेन अपने सपोर्ट में कुछ एविडेंस प्रूव करना है तो वो प्रेजेंट करने का मौका मिला। नाउ given notice within 10 days of order or within such further time not exceeding 10 days as the inquiry authority may allow, and for discovery or production of any document which are in the possession of government not mentioned in the list। तो ऐसे कोई documents हैं उसके लिए 10 days में notice चाहिए होगा। The government servant shall indicate the relevance of the documents। तो ये उसको indicate करना पड़ेगा कि ऐसा document वो present करना चाहता है तो क्या reason है। Now Rule 12, the inquiring authority shall on receipt of the notice for discovery or production of documents forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept। तो ये नोटिस जो था डिस्कवरी या प्रोडक्शन के लिए इंक्वायरी अथॉरिटी उस अथॉरिटी को देगी जिसके पास एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड विद इन रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन बाय सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड। तो कोई डेट के साथ ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा। Provided that the inquiring authority may for reasons to be recorded refuse to requisition such as are in its opinion not relevant। तो अगर वो डिनाई करती है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं तो देन अगेन यू हैव टू रिकॉर्ड इन राइटिंग कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों आपने किसी पर्सन को डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करना चाहता था अपने डिफेंस में वो रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, because this affects his right to fair hearing, so it is necessary here। Now let's just continue with the rest of the rules in the next video. Till then, revise these rules and we'll continue with the topic. Thank you very much for watching. Please like, share and comment.